وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ جل شانہ و نوالہ نے ہمیں اپنا فضل سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں. اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان پر. اللہ نے ہمیں بنایا، پھر یہی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا. اللہ جل جلالہ و نوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا، اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا. ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا. خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا. پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ و نوالہ نے بہت تقسیم کیا. دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا. دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی برائی سنی. کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو دوستو، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے. کیونکہ انسان کی سارے چیز جو ہے دنیا کے، یہ سارا ان کے ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا. دوستو، دنیا میں کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی. نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں. میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے. دوسرا کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں. اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس. صبح شام میں کرتا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں. حوارین نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو کہ آپ غنی دنیا میں کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، صرف اللہ کا محتاج ہے. تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا. اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے. اور دوستو، جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے. اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل اور کرم سے، رحم سے وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو رہا ہے. ان کا بیوی محترمہ شام کی تھے تو رو رہا ہے، اور انہوں نے فرمائی کہ اے میرا شوہر کا تکلیف پریشانی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، وہ طرف آج تو میرا خوشی کا دن ہے. ابھی جو موت ہے اور موت کا وقت آیا میرا، یہ خوشی کا وقت آیا. کیوں؟ کہ میں تو جا کے میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا.
इसीलिए मौत से मुझे दुनिया में और कौन सा चीज है जो मुझको खुश करे, तो खुशी के साथ ईमान वाला जब दुनिया से रुखसत होता है ईमान पर तो वो खुश होता है, और ईमान पर जा रहे हैं इसका अलामत जाहिर होता है, उसकी पेशानी में पसीना आ जाते हैं, आंख से आंसू निकलता है। क्यों कि उसको अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से फिरिश्ता ने खुशखबरी सुनाता है, और उसका जो जगह जन्नत, उसकी जन्नत को उनके सामने पेश करते हैं। वो उस जन्नत को देखकर अफसोस करते हैं कि हाय अफसोस, मैंने थोड़ा सा अमल किया दुनिया में, ये थोड़ा सा कुछ नमाज रोजा ऐसे ही कुछ गश्त कर लिया, 3 चिल्ला दे दिया, आज ज्यादा से ज्यादा साल लगाया और थोड़ा सा गश्त और ऐसे ही मशवरा, इस पर अल्लाह ने मुझे इतना दिया, पूरा जिंदगी क्यों नहीं लगाया? अगर पूरा जिंदगी मैंने इसके पीछे लगाता तो मुझे कितना बड़ा जन्नत और कितने खुशी का चीज मिल जाता। तो इसको देखकर उसने अफसोस करता है, इसके अफसोस पर उसकी पेशानी में पसीना आ जाता है और आंखों से आंसू निकलता है। तो दोस्तों, खुशी की साथ दुनिया से रखसत ईमान वालों को, दोस्तों खबर में ईमान वालों को ईमान की बरकत से जन्नत की बिस्तरा मिलेगा, जन्नत की लिबास। ये दुनिया की जितना कीमती भी हो कफन या घटिया हो, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल की वक्त जब आया तो इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को वसीयत किया कि देखो मुझे पुराने कपड़ा में दफन कर दो। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाई कि अब्बाजान क्यों, हम नए कफन तो आपको दे सकता है, मैं हो मेरा भाई है, हम दे सकता है, मैं वजह क्या है? तो इन्होंने फरमाया देखो ये जो पुराना और नए कफन इसका कोई एतबार नहीं, दुनिया से मैं ईमान के साथ आखिरत में पहुंच गया कब्र में तो फौरन इस कफन को खोला जाए और जन्नत का कफन मेरे लिए आ जाएगा। अगर नाउज़ुबिल्लाह ईमान की बगैर दुनिया से गया, ईमान जाय हो गया, तो कब्र में जाते ही जहन्नम की लिबास मुझे पराया जाएगा। इसीलिए तुम्हारे नए और पुराने का कोई एतबार नहीं, ये नए का ज्यादा हकदार जिंदा है, तो इसीलिए उन्होंने को पुराने कपड़ा ही में कफन दिया गया। तो दोस्तों, ईमान की बरकत से कब्र में भी आराम, राहत, इज्जत। क़यामत के दिन ईमान वालों को वहां भी और खुशी है, अल्लाह की आरश की साया में उसको ईमान की बदौलत जगह मिलेगा, सीधे हाथ पर नामाए अमल आएगा और वो कहेगा हाँ वो मुकरा वो किताबिया, ये मेरा नामाए अमल देखो, पढ़ो, कितने खुशी की चीज है इसमें। तो दोस्तों, और ऐसा उसको नहीं मिलेगा, ईमान वालों को बहुत शान से मिलेगा। बंदा को अल्लाह के सामने पेशी होगा, फरिश्ता उसकी नामाए अमल को सीधे हाथ पर देगा और एक चीख ऐसा जोर से लगाएगा आवाज कि फलाना की बेटा फलाना कामयाब हो गया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी इंसान तक सारे मैदान माशर में जितने इंसान सब इस आवाज को सुनेगा कि एक अल्लाह के बंदे कामयाब हो गया। तो ये कितने खुशी की बात। फिर जब फुलसिरात में ईमान वाला हाजिर हो जाएगा तो फौरन वहां उनकी नूर जाहिर होगा। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व अयमानिहिम। दोस्तों, सामने दाएं ईमान का नूर होगा और इसी ईमान की नूर के पीछे चलते चलते वो जन्नत तक पहुंच जाएगा। फुलसिरात उसका कोई कठिन भी नहीं होगा, परेशानी का कोई सबब नहीं बनेगा, खबर ही नहीं रहेगा, वो तो जन्नत की दरवाजा पर पहुंच जाएगा। फिर ईमान की बरकत से जन्नत उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने हमें ईमान वालों की घर में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमें नवाजा। इसलिए दोस्तों, इस पर ही अल्लाह का एहसान खत्म नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने पिछले नबियों की उम्मत में हमें नहीं पैदा फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, किसी नबी की उम्मत में हमें पैदा नहीं फरमाया।
सईदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में हमका खैरुल उम्म, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने नाम रखा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में सबसे पीछे आया हो, लेकिन जन्नत में सबसे पहले तुम दाखिल हो जाओगे, शुरू से जन्नत तुम होगी। तो दोस्तों, फिर इस पर अल्लाह के एहसान खत्म नहीं, इसके ऊपर अल्लाह ने और एहसान फरमाया। क्या है कि अल्लाह ने हमें अवालीन में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह वालों ने फरमाया कि हमें आखिरीन में पैदा फरमाया। इस उम्मत की अवालीन जो है सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम है। लेकिन दोस्तों, इनका फजीलत बेहद है, बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, उस जमाना में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद ये लोग भी था। हम जैसे आराम और राहत की तलाश करने वाले और अपना नफ्स के पीछे चलने वाला, हो सकता उन पर जो मुजाहिदा और कुर्बानी आया वो हम पर आता तो हम नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ हो जाते हैं। ऐसा कोई इब्तिला में अल्लाह ने हमें नहीं डाला। बगैर इब्तिला और इम्तिहान के हमको सैयदुल कौनैन की उम्मत में अल्लाह ने शुमार कर लिया। फिर दोस्तों, और कितने बड़े बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज़ू फरमाया, तमन्ना किया, एक मर्तबा फरमाया कि काश मैंने मेरे भाइयों को देख लेता। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम लसना इख्वानना, क्या हम आपकी भाई नहीं है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम असहाबी, तुम तो मेरा सहाबी हो, लेकिन मेरा भाई वो है जो मेरे बाद आने वाला है और बगैर देखे मुझे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, वो है मेरा भाई। तो अल्लाह की कितना बड़ा चीज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भाई बनाया, देखने की आरज़ू फरमाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो उम्मती आपको नहीं देखा और आप भी उनको नहीं देखा। क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मत वहां हाजिर होंगे, तो आप कैसे आपकी उम्मत को पहचानेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मैदान में 100 घोड़ा है। घोड़ा मालूम है ना, सब घोड़ा सुर्ख, एक घोड़ा सिर्फ उसमें दूसरा कलर है, उसकी सर में, पेशानी में सफेदी, पैर में सफेदी। तो ये 100 घोड़ा में वो घोड़ा वाले अपने घोड़ा को पहचान के निकलने में कोई तकलीफ होगा? तो सहाबाए किराम ने फरमाया नहीं, क्योंकि वो तो सारा एक कलर की है, एक रंग है उनका, सारे के सारे सब सुर्ख है, किसी में सफेदी है नहीं, इसमें ही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यातूना उम्मती यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन असारिल वज़ू, मेरा उम्मत क़यामत के दिन जो आएगा उनकी वज़ू के आज़ा से नूर चमकता हुआ होगा, और ये देखकर मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। दोस्तों, कितना बड़ा बात है। इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने अपने हाथ धोता तो बगल तक चले जाते। शागिर्दों ने पूछा कि इतने दूर तक क्यों? ये तो नहीं है, दरमियानी में है, काफी है आपके लिए। फरमाया यतीलु गुर्रती, ताकि क़यामत के दिन मेरा नूर ज्यादा चमके, ज्यादा लगे, इसलिए। तो वो उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा वालों ने हमें आखिरीन में बनाया, ईमान दिया, और उसकी बात अल्लाह की बड़ा फजल है कि दुनिया के कितने मुसलमान भी है, कितने इंसानों को हम देख रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं और किसको किस चीज के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया। किसी को दोस्तों अल्लाह ने दुकान के साथ जोड़ दिया, उसको दिन और रात उसी का फिक्र है, और वो दिल में ऐसा घर करके गया कि कोई साथी उनके, कोई भाई जाए, दोस्त जाए और उसकी दुकान का तारीफ करे कि आपकी दुकान तो बहुत शानदार है, तो वो उसको करीब बैठाते हैं और चाय पिलाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी को अल्लाह ने गाय बैल की फार्म के साथ जोड़ दिया, उसका दिन और रात उसी के पीछे, इसका तारीफ सुने तो खुश होता है, इसकी कोई बुराई सुने तो नाराज होता। किसी को अल्लाह जल्ल शानो ने दुस्त के साथ जोड़ दिया, उसका पूरा दिन और रात दुस्त के पीछे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे, घूम रहे हैं। दोस्तों, ऐसे किसी का और किसी चीज के पीछे
जोड़ दिया, उसका दुनिया आखिरत का सारा चीज खत्म। लेकिन अल्लाह अपने फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की जमाना से इतने दूर की बात भी हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से जो इस उम्मत को मिला, नबी वाला मेहनत, अल्लाह ने हमें उस नबी वाला मेहनत के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, इसीलिए इसका शुक्रिया हम अदा करें तो अदा नहीं हो सकता। अब दोस्तों, हमको जो अल्लाह ने ईमान दिया, हम ईमान वालों पर तीन चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो है कि दोस्तों, आज ईमान तो असल सरमाया है इंसान का। जो असल ईमान वालों पर सबसे जरूरी चीज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें। ईमान वाला ईमान से गाफिल नहीं हो सकता, हर वक्त अपने ईमान का फिक्र हो। ईमान से गाफिल हो तो ईमान का दुश्मन उसका खत्म कर देता है। जब दुनिया में इंसान आया, उनके साथ उनके ईमान का दुश्मन भी आया। इसीलिए दुनिया में इंसान की जान का दुश्मन जो होता है वो सोता है, आराम करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, कभी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ईमान का जो दुश्मन है वो रात और दिन कभी वो गाफिल नहीं होता, वो इन ईमान वालों की दुश्मनी में लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह ने जिनको ईमान दिया, ईमान की कीमत जिनके सामने था, इन्होंने हर वक्त अपने ईमान का फिक्र कि हमारा ईमान बाकी रहे। इसीलिए ईमान वालों पर यह फर्ज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें, ईमान का ख्याल रखें। अबू मुलैका ताबीन, अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने फरमाया कि मैंने 30 सहाबाए किराम की सोहबत उठाई, इनसे हमने दीन सीखा, लेकिन वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिमुन निफाक। ये सारे सहाबाए किराम जिन पर अल्लाह राजी है, वो अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि क्या हम ईमान पर है या मुनाफिक हो गया। कितने बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे क्या हाल है? क्या हम सुबह शाम हमारे ऊपर रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्या हमने हमारे ईमान के बारे में कोई ऐसा फिक्र है कि भाई हमारा ईमान का क्या हाल है? हाँ, असल में हम ईमान वाले हैं या ईमान से हम निकल गए? इससे और बड़ी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान हाजिर है मदीना में। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका किस्सा मशहूर है, फज़ाइल अमल में भी है। दोस्तों, घर गया, बीवी बच्चा में खाने पीने में थोड़ा सा मशगूल हुआ, इतने में उनका ईमान का फिक्र पैदा हो गया। तो देखा कि मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब था मजलिस में, मस्जिद में, तो उनकी ईमान का जो कैफियत था वो अभी बाकी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं कि घर गया तो घिर गया, सब खत्म, क्या आखिरत क्या ईमान, सब भूल के दुनिया ही दुनिया, ऐसा नहीं दोस्त, थोड़ा सा तो फर्क आया। इतने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और चिल्लाना शुरू किया। फरमाया नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। दोस्तों, ये नबी वाला मेहनत जो है, ये अपने ईमान को हिफाजत करने की मेहनत है। इसमें जितना हमारा जान माल लगेगा, इतना हमारा ईमान की हिफाजत का फिक्र पैदा होगा। और ना तो मुसलमान लाखों हो गए, अरे भाई मुसलमान ईमान तो है और क्या, उसकी बात क्या। लेकिन जितना ईमान वाला का जितना ईमान मजबूत, उतना ही उनकी ईमान की हिफाजत का फिक्र। घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे, क्या कहते हैं कि नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। चिल्लाता चिल्लाता हुआ दोस्तों, रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंज़ला, तुम क्यों चिल्लाते हो? तो फरमाया कि मैं तो मुनाफिक हो गया। बोले सुभान अल्लाह, कैसे मुनाफिक हो गया? अब तो सच्चा पक्का मुसलमान है। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो, जन्नत और जहन्नम की बात सुनता हूँ, तो दिल की जो कैफियत, ईमान का जो कैफियत है, घर में जब बीवी बच्चा में होता हो तो बाकी नहीं रहता, थोड़ा फर्क हो जाते हैं। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया, अरे हंज़ला, तो मैं भी ही बीमार में मुब्तला, मैं भी ही मुनाफिक हो गया। कौन शख्स है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि सारे नबियों की उम्मत में से सबसे पहला उम्मत जो जन्नत में जाएगा मेरा उम्मत, और मेरा उम्मत कोई जन्नत में नहीं जा सकता अबू बकर से पहले।
सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा। और दोस्तों, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्सियत है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजा खोल दिया जाएगा, 8 दरवाजा से उनको इस्तकबाल होगा। ऐसा शख्सियत फरमाने है कि मैं मुनाफिक हो गया, दोनों भाग के मस्जिद में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ। दोस्तों, इसीलिए हमारा ताल्लुक मस्जिद से हो, इसीलिए मस्जिद में मशवरा होता है। दोस्तों, इसीलिए मस्जिद में हम जो बैठते हैं, तालीम की हल्का होता है, और इसे घर घर जाके हम जो लोगों को समझाते हैं, ईमान की बात मकसद यही है ताकि हमारा ईमान का हिफाजत हो जाए। दोस्तों, फौरन आके मस्जिद में हाजिर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय हंजला तुझे क्या हो गया? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हंजला तुम मुनाफिक हो गया। अजीब बात, कैसे तुम मुनाफिक हो गया? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो मेरे ईमान का ये कैफियत, घर में जाता हूँ बीवी और बच्चे में तो खाने पीने में मशगूल होता है तो ये हालत बाकी नहीं रहता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ गया कि ये तो ईमान, हंजला की ईमान का फिक्र है, ईमान की फिक्र इतना गालिब है और उनका ईमान इतना कवी है कि थोड़ा सा फर्क भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फरमाया कि हंजला, तुम्हारा जो हालत और कैफियत मस्जिद में होते हैं वही हालत और कैफियत तुम्हारा घर में भी बाकी रहता तो फिरिश्ता तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ मुसाफा करता। अरे मर्रतन कररतन ये हालत होगा, फिर वो हालत आए तो फिर इस हालत की तरफ आओ। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालहु ने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें वो ईमान की हिफाजत की मेहनत में लगा दिया और दूसरे कामों में नहीं लगाया। फिर दोस्तों, हमारे जिम्मा में और एक चीज है, और वो चीज क्या है कि वो हम हमारे ईमान को बढ़ाने का फिक्र करें। ईमान तो ऐसा चीज है कि इसको बढ़ाने का फिक्र हो तो वो बढ़ता है और इससे काबिल हो जाता है तो घटता है। मुसलमान है, नाम भी मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान, ये नाम तो ठीक है लेकिन काम में इस्लाम का करीब नहीं। मुसलमान है या गैर मुसलमान फर्क भी नहीं है। क्यों? ईमान तो है लेकिन इनका ईमान कमजोर होते होते इतना कमजोर हो गया कि उसने उनको अल्लाह के हुक्म पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर खड़ा कर नहीं सकता। इनका हालत क्या हो गया? ना हराम से बच सकते, ना फरमानी से बच सकता, गुनाह से बच नहीं सकते। ईमान, ऐसा ईमान कमजोर हो गया कि उसकी ईमान ने उनको नाफरमानी से नहीं रोकता। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, इनका ईमान का हालत ऐसा ही है कि एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में ये उसको लेटाया हुआ है, बिस्तर पर है और उसकी दवा करीब रखा हुआ है, सारा चीज उसके पास है, लेकिन उनके अंदर इतना ताकत नहीं कि वो दवा लेकर हाथ से, अपना हाथ से वो खाए या दवा पिए। लेकिन वो आदमी मुर्दा है या जिंदा है? जिंदा है, लेकिन वो जिंदा तो है, किसी काम के नहीं है, नाम के जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारा हाल यही बन गए। ना हमारे ईमान ने अल्लाह की नाफरमानी से रोकता है, ना अल्लाह के हुक्म पर हमें डलता है। तो इसीलिए हर मुसलमान पर यह फर्ज है इतना ईमान हासिल कर ले, मेहनत करके इतना ईमान बनाए कि जिस ईमान ने उसको अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे और अल्लाह की नाफरमानी से रोक दे। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने ये ईमान हासिल किया। तो इनके ऊपर नमाज तो छोड़ना, रोजा छोड़ना ये तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है, सुन्नत भी उनसे फौत नहीं होता। दुनिया की जिस माहौल में भी गया, हजरत सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। इनके पास अल्लाह और अल्लाह की रसूल सबसे ज्यादा महबूब, अल्लाह की हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सब उनके पास सबसे ज्यादा महबूब। दुनिया की सारे चीज को वो छोड़ सकते लेकिन हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। जिस माहौल में जाए, ये ईमान की ताकत की बरकत से होता है। सहाबाई किराम जब ईरान पहुंचे तो हजरत सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ईरान फतह होने से पहले चावल अपने आंख से नहीं देखा, सुना है लेकिन खाया भी नहीं, देखा भी नहीं। सीरत में है सहाबाई किराम सब ईरान में दाखिल हुआ तो एक बाग में पहुंचा तो बाग वाला भाग गए। वो तो गैर मुस्लिम था, मजूस हो, भाग गया। खेती वाला भाग गए।
तो सहाबाई किराम को एक बड़ा बैग मिला जिसमें जुप्पूर है, तो उन्होंने खुला तो देखा ये क्या चीज है, गंदम भी नहीं है, मक्खई भी नहीं है, ये क्या चीज है। उनको पहचानने, वो नहीं पहचाने, तो इसको उठा के पूरा बैग ले गया आमिर साहब के पास। आमिर साहब को भी मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। तो फरमाया कि भाई आमिर साहब एक घोड़ा ले आओ। तो घोड़ा लाया, घोड़ा के सामने पेश किया, तो इस घोड़े ने आराम से खाना शुरू कर दिया। खा के भाई ये तो सारा खा जा रहे हैं, मरता नहीं। इन्होंने समझा पहले कि ये छोड़ के कि हम खा के मरे, तो देखा कि ये तो जानवर नहीं मर रहे। कहा कि भाई रुको रुको उसको। फिर एक ईरानी को पकड़ के लाया, तर्जुमान लाया, पूछा ये क्या चीज है। तो इसने कहा अरुज, इसी का नाम है चावल। सहाबाए किराम का सुभान अल्लाह, यही चीज है अल्लाह के रसूल ने हमें खबर दे के किया, चावल। तो इस हालत में सहाबाए किराम ईरान में पहुंचे। तो जमात किया ईरान के शाह ईरान किसरा को दावत देने के लिए। तो उसने बड़ा दस्तरखान लगाई इनके इकराम के लिए, और दूर से वो देख रहा है कि मुसलमान ने तो सहाबाए किराम ने ऐसा शानदार दस्तरखान देखा ही नहीं कभी, तो क्या करता है इस खाने के सामने। तो खाना शुरू हुआ, तो एक की लुकमा दस्तरखान पे गिर गया। तो साहबी ने इस लुकमा को उठाया खाने के लिए। तो दूसरे एक ने, शायद वो ताबीन होगा या पीछे वाले, इन्होंने ऐसे ही हाथ से उनका हरकत दिया। तो उसने पूछा, साहबी ने, भाई क्या हुआ। बोले तुमको मालूम नहीं, ये अरब नहीं है, ये तो ईरान के शाह ईरान की दस्तरखान है। वो तो कहेगा कि हम तो खाने पर की ललचा है, हमारे अंदर लालच है, और हम इसके हारिस है। तो साहबी बहुत गुस्सा हो गया और फरमाया, तुम क्या कहते हो मुझे, अनत्रुकु सुन्नत हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमर्ज़ात हाज़ल हमक़ा, इन बेवकूफी के लिए, इनको खुश करने के लिए मैं मेरे हबीब का सुन्नत छोड़ दूं। ये हालत था। आज हमारा ईमान का क्या हाल है, हम खुद ही देखें। किसी शादी की मजलिस में गया तो सुन्नत कहा जाते हैं, किसी और माहौल में घिर गया तो उसमें क्या हमारा हालत होता है। ये ईमान की कमजोरी का दलील है। इसीलिए दोस्तों, ये जो तहरीक ईमान, ये दावत वाला मेहनत चलाई जा रही है, इसका मतलब यही मकसद यही है कि हमारे ईमान में कुव्वत आ जाए कि हर हाल में हम तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, हम तो अल्लाह की जिंदगी चलाएंगे अल्लाह के हुक्म को देखकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखकर। इससे चाहे बीवी खुश हो या नाराज हो, औलाद खुश हो या नाराज हो, मेरे माहौल क्या कहे, मेरा बस्ती वाला क्या कहे, ये ईमान वाले की देखने की चीज नहीं है। ईमान वाला तो वो देखेगा कि अल्लाह क्या कहता है, मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में मुझे क्या बता के गया है। ये है ईमान का ताकत का बात। और सहाबाए किराम को ऐसा ईमान हासिल हो गया, ऐसा ईमान उनको भर गया कि उन्होंने हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना आसान। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम शराब का बहुत आदी था, बहुत जमाना से। अरब वाले फख्र करता था जाहिलियत के जमाना में कि हमारे घर में इतने पुराने शराब है और शराब का मजलिस लगता है इनका। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारे घर में मेहमान आया, मैंने इनको शराब तकसीम कर रहा हूँ। जैसा कि कोई मेहमान आया, शरबते चाय लगता है तो शराब लगता था। इन्होंने शराब पीने की, कोई पी रहा है, कोई हाथ में लिया, इतने में आवाज हुआ। फरमाया कि भाई अनस देखो बाहर में क्या आवाज हो रहा है। उन्होंने आके सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करने वाला ने ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। फरमाया अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, बस ये बात लेकर मैं जब गया और इनको जब सुनाया तो जो पी रहा था उन्होंने फौरन अपने मुंह से बस उसको फेंक दिया, हाथ में जो था वो भी फेंक दिया। जिन्होंने पिया था वो अपने अंदर से निकालने की कोशिश में लग गया। फरमाया जब मैं मदीना की गली में निकला तो देखा कि शराब का सैलाब आया, जिनके घर में था वो सारे के सारे रास्ता में ढाल दिया। फिर यही खत्म नहीं हुआ बात, फौरन भाग के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिन बर्तन में हम शराब रखते थे इसका इस्तेमाल हमारे लिए जायज है या नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। मिशका शरीफ में लंबा हदीस है। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इब्तिदा में ये सारे चीज को से मना फरमाया था कि इनके दिल से भी उसका मोहब्बत और इसका जिक्र भी चले जाए। फर्दा की हुक्म नाजिल हुआ तो दोस्तों जब ऐलान हुआ, मुसलमान सहाबियत में से एक वो
घर वापस आ रहे थे, करीब पहुंच गए थे, इतने में आवाज सुनी तो रास्ते के किनारे में बैठ गई, बच्चा को भेजा कि चादर ले आओ, चादर ले आया, अपना बदन को ढाका, फिर वो घर में पहुंचे। शोहर ने कहा कि आ जाते, तो क्या जवाब दिया कि हम जब अल्लाह के हुक्म हमारे कान में पहुंच गया, इसके बाद मैं घर में आऊं, इतने में मेरा मौत आ जाए तो मैं तो अल्लाह की नाफरमान बनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हूं। दोस्तों और भाइयों, आज कितना बातें हो रहा है, कितना कानून बनाए जा रहे हैं, फिर भी मुसलमान इस पर, ये फर्ज है औरत के लिए, लेकिन अदा नहीं कर सकता। और कितना हुकूमत का कोशिश है कि मुसलमान का बच्चा ये हराम से बच जाए, ये शराब से, निशा से दूर रहे, लेकिन क्यों कि हमारे ईमान इतना कमजोर हो गया, जिस ईमान ने हमें अल्लाह के हुक्म पर खड़ा नहीं कर रहे, अल्लाह की नाफरमानी से हमको नहीं बचा सकते। तो इसीलिए दोस्तों, इसी ईमान के पीछे मेहनत हो, ताकि मेहनत करते करते हमारा ईमान भी जैसा कि सहाबा इकराम में कि ईमान मजबूत और ताकत रहता है, वो ताकत पैदा हो जाए। तीसरा, हर ईमान वालों के लिए दोस्तों जरूरी है कि अपने ईमान पर खात्मा हो। ईमान पर गया तो उसका कोई परेशानी नहीं है, और बगैर ईमान के आखिरत में गया तो उसका कोई सहारा नहीं है। मरते ही आखिरत की सारे अज़ाब शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, शैतान का आखिर दम तक बंदा पर कोशिश होगा कि कैसे इसको क्या करे, एक बेईमान बनाए, इनके ईमान को लूट ले। इसीलिए दोस्तों, जो वाकया है, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, बहुत बड़े शख्सियत उम्मत के इमाम अहले सुन्नह जिसका लक़ब है, जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, हक के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया, सीरत की किताबें भरा हुआ है। इनका इंतकाल हो रहा है, शागिर्द है, बेटा है करीब, इन्होंने उनको तलकीन किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने जवाब में फरमाया, इलालान ला, अभी नहीं। सब घबरा गए, खत्म। जिस शख्स ने अपना जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, इतने जिल्लत उठाई और इतने तकलीफ बर्दाश्त की, और अब ईमान की बात, ईमान के साथ आखिरत में जाना, और इस वक्त इन्होंने कहा कि अल्लाह ला, अभी नहीं तो किस वक्त के लिए कलमा। इतने में फिर उन्होंने दो आँख खोल दिया, उनका लहरा पड़ गया मौत का। अभी आँख खोला, कर बेहोशी तारी तब बेहोशी न गया, तो फरमाया फौरन कि अब बजान, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया अभी नहीं, क्या मतलब, क्या हुआ? बोले तुमने भी सुन लिया? बोले हाँ। बोले शैतान लाइन मेरे पास आया और ये कह रहा है कि आए अहमद, आपको तो मुझसे नजात मिल गया। मैंने कहा कि नहीं, तुझसे मैं अभी तक इत्मीनान नहीं हो, नजात मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे हुक्म में अभी तक जान है। जब कलमा के साथ, ईमान के साथ हल्कम से ईमान गुजर करके चले जाए, तो फिर तुझसे मैं अमान में हो, इत्मीनान में हो। अल्लाह वालों की ऐसा फिक्र था। तो दोस्तों, हमें वो फिक्र भी आज मौकूफ है। अरे क्या मौत आ जाए तो ऐसा मर जाएंगे, मसला ऐसा नहीं। दोस्तों, मौत तो ऐसा सख्त है कि एक साथ 100 तलवार एक आदमी में लगाए, आदमी पर चला दे तो उनको जितना तकलीफ, इससे भी ज्यादा। जिंदा बकरे की चमड़ा को उतार दिया जाए, इससे भी ज्यादा तकलीफ। लेकिन ईमान वालों को, जिन्होंने जिंदगी अपना ईमान पर गुजारी और ईमान की तकाजा पर अपने जिंदगी को उठाया, तो दोस्तों उसका तो मौत ऐसा आसान होगा जैसा कि आटा के अंदर से बाल को निकालना, आराम से इस दुनिया से हंसता हुआ चले जाएगा, जैसे कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु किया। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने, अल्लाह अपने फजल से, करम से, ना हमारा कोई ऐसा अल्लाह के ऊपर हमारा हक या हम पर ऐसा आया या हम ऐसे की लाए, फिर भी अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपना करम से हमें वो ईमान की मेहनत अता फरमाया, जिस मेहनत के जरिया से ईमान का हिफाजत भी होता, जिस मेहनत के जरिया से दोस्तों ईमान बढ़ता भी रहता है, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर भी होगा। दोस्तों, असल इंसान के लिए ईमान है। अगर ईमान ना हो, दुनिया सब मिल जाएगा, पूरी दुनिया का बादशाह नमरूद बन जाए, नमरूद जैसा हुआ, लेकिन ईमान नहीं है
तो सबसे बड़ा मुसीबत उसको दुनिया में हर वक्त परेशानी रहता है, इसके दिल में सुकून कभी नहीं होगा। सारे दुनिया का बादशाह भी बन जाए लेकिन सुकून नहीं, मरते वक्त जिल्लत की मौत, जैसा कि नमरूद जलील होकर मरा, फिरौन जलील होकर मरे, हारून दुनिया के बड़े मालदार जलील होकर मरे, हामान वज़ीर आला था फिर भी जलील होकर दुनिया से गया ईमान न होने की वजह से। और कब्र में जाते ही वो जहन्नम की बिस्तरा और जहन्नम की लिबास उसको मिलेगा ईमान न होने की वजह से। और क़यामत के दिन उसको बाएं हाथ में नामा अमल आएगा और उसको अल्लाह की चेहरा देखने का मौका